Good afternoon, ma'am. Afternoon. बोलिए. If we are adding e to the power x to 0, the value will be e to the power x, no, ma'am. E to the power ax. No, ma'am. I am adding 0 to e to the power x, so value will be e to the power x, of course. You are adding what? 0, ma'am. 0 to e to the power x. 0 to e to the power x. Yes, ma'am. So the value will be e to the power x, no, ma'am. Yes. Yes, ma'am. And that's why 0 is called additive identity, I guess. 0 is always additive identity. Hope you all are fine. Yes, ma'am. Hoping the same for Yes, you also. Yes, ma'am. So the situation is very critical. Yes, ma'am. And it is getting worse day by day, ma'am. And number of student is also reducing day by day. That's why I'm asking. In safe position. Okay, so we have to study what we have learned last day. The remaining parts of partial differentiation, ma'am. Okay, partial differentiation and the Lewis theorem all have been done. Yes, ma'am. We have just Did completed all the that. things. Yes, ma'am. So again, we have to start new topic. Yes, ma'am. Indeterminate form. Okay. So if anyone wants to ask anything from previous class, then you can. And again, we You are are fine now, ma'am. yes, till now I'm fine. I don't know what will happen at the next. In fact, no one knows what will happen. Because in my colony, there is a person who died. Same here, ma'am. And just, I would say, now in front of my house, one is very serious and using. Ma'am, do you live in cylinder. Patna or somewhere else? I am in Patna. Where, ma'am, in Patna? So anyone can tell me what is indeterminate word means? Ma'am, the word, ma'am, anything which is not defined, ma'am. Like when we get the denominator as 0 or something power as infinite, then we will say that it is indeterminate. Okay, we can't determine that. Yes, ma'am. Okay, then so we have to start that. Excuse me, ma'am. Yes, boliye. Ma'am, in assignment question, the question number 2, there is some mistake. You are not Yes, ma'am. audible. Question number 2. Question number 2. Ma'am, yes, ma'am. We have given Yes, assignment, ma'am. na, the question number 2. Okay, what is in question number 2? Ma'am, the proof result will be b square minus ab in the Yes, ma'am. in B numerator. square minus AB. Yes, ma'am. But you have written b minus Yes, ab. ma'am. I guess. Yes, ma'am. Okay. Okay, no problem. You know what is the Side answer. error. Then go according to that. Yes, ma'am. So just go through indeterminate form. Let
let y is equal to sin x by x. This kind of function है. Who's Bolbam Kumar? Without roll number, without ID, he is trying to enter class. Is anyone? He's from batch 2, ma'am. Batch 2. Batch 2, ma'am. Yes, ma'am. But without roll number, without ID. Some fake students also get inside the class sometimes. Not connected with audio also. Bolbam Kumar, what is your roll number? 9, ma'am. then उसे लिखेगा कौन? ओके मैम, लिख दे रहे हैं. नेम का ऑप्शन चलो ठीक है, देखते हैं इंटरडिटरमिनेट फॉर्म. हमारे पास एक फंक्शन है लाइक ऐसा, देख लीजिए y इज इक्वल टू sin x by x. ठीक है, और अगर इस फंक्शन में हम लोग पुट कर देते हैं x का वैल्यू 0, तो देखो sin 0 by 0 हो जाएगा. और sin 0 का वैल्यू आपको पता है दैट इज 0 एंड 0 by 0 टर्म आ जाता है. अब अगर कभी भी ऐसा टर्म आ जाए, इनफैक्ट कहीं भी अब कोई फंक्शन गिवन हो और उसका वैल्यू मिल जाए, सिर्फ इस फंक्शन की बात नहीं हो रही है, किसी भी फंक्शन की बात हो रही है, अगर उस फंक्शन में आपका न्यूमरेटर टर्म को सॉल्व करे, अगर लिमिट पॉइंट दे दिया जाए और उस लिमिट का वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, देन 0 by 0 टर्म आ जाए, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंगलेस टर्म्स होता है. और ऐसा कोई भी मीनिंगलेस टर्म का आपसे वैल्यू पूछेगा, देन आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि उसका आंसर क्या हो एग्जैक्टली वो बता पाए. सो अगर ऐसा फंक्शनल फॉर्म होता है तो उसको जैसे देखो, डिटर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है दैट कैन बी डिटरमाइंड. इनडिटर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. कोई भी ऐसा फंक्शन का वैल्यू जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, दैट फॉर्म ऑफ द फंक्शन इज नोन एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. जैसे इस एक्सप्रेशन में अगर हम सॉल्व कर दें, sin 0 by 0 लिखें, दैट इज 0 by 0 फॉर्म आ जाता है, which has no meaning. Thus, if any expression, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें आप फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ दूसरा फंक्शन भी है, एक fx है दूसरा phi-x है, वो बिकम हो, अगर वो ऐसा हो जाए जो 0 by 0 के फॉर्म में आ जाए at any particular point, कोई भी particular point x is equal to a हो, x is equal to 0 हो, x is equal to a plus h, कुछ भी ऐसा टर्म आ जाए जिसमें वो सॉल्व करते हो तो 0 by 0 के फंक्शनल फॉर्म में आ जाए, then that function is known as indeterminate functional form. इसी तरह जैसे 0 by 0 के टर्म में रिजल्ट आ सकता है, उसी तरह सिमिलरली एक एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के टर्म में रिजल्ट आ जाए. अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के टर्म में भी रिजल्ट आता है एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ए और सम 0, कुछ भी 0 भी आप ले सकते हो, एट पर्टिकुलर पॉइंट ए कह दिया, ए में भी 0, ए में भी सम कांस्टेंट नंबर, तो अगर ऐसा फॉर्म आ जाए, देन दैट फंक्शन इज आल्सो नोन एज इनडिटर्मिनेट. इनडिटर्मिनेट सिर्फ 0 by 0 होगा तभी नहीं होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तब भी वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही होगा, बिकॉज उसका भी कोई मीनिंग नहीं है. इन्फिनिटी कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है जिसको आप एक्सप्रेशन में रख देंगे और रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, सो ऐसे केसेस के जितने भी फंक्शनल फॉर्म आएंगे, दैट ऑल फंक्शनल फॉर्म इज इनडिटर्मिनेट. अब इसी में बात करें, इस फंक्शनल फॉर्म के अलावा भी और बहुत सारे फंक्शनल फॉर्म है, लाइक 0 to into infinity, infinity into infinity, 1 to the power infinity, infinity to the power 0, something ऐसा कुछ numbers भी आता है, that all are considered as indeterminate form. उसको determine नहीं किया जा सकता. तो ऐसे जितने भी functional form होंगे, हम सबको indeterminate functional form कहते हैं. लेकिन जितने भी फंक्शनल फॉर्म है इनडिटर्मिनेट फंक्शनल फॉर्म, उन सब में 0 by 0 इज कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म.
0/0 का जो फंक्शनल फॉर्म है उसको हम लोग फंडामेंटल इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, और बाकी सारा फंक्शनल फॉर्म जो होगा इंडिटरमिनेट का वो रिड्यूस करके 0/0 के फंक्शनल फॉर्म में लाया जा सकता है। देखो यहाँ लिखा है, ऑफ ऑल द फंक्शनल फॉर्म 0/0 इज कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल इंडिटरमिनेट फॉर्म एंड अदर काइंड्स ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म रिड्यूस टू 0/0। जितने भी फंक्शनल फॉर्म है ये सारे फंक्शनल फॉर्म को आप रिड्यूस कर सकते हैं टू 0/0, और इसको हम लोग फंडामेंटल इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। अब देखिए, अब चूंकि फंडामेंटल हम लोगों ने यहाँ देखा कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0, इंफिनिटी, और ये सारे टर्म्स को हम इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते सिंपली किसी फंक्शन के सॉल्यूशन को हम सिंपली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब डिटरमाइन नहीं कर सकते और डिटरमाइन तो हमें करना है, और सारे फंक्शनल फॉर्म को हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गेन किया है कि 0/0 के फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। तो अगर हम इस 0/0 के फंक्शनल फॉर्म को सॉल्व कर लें तो हम सारे के सारे फंक्शनल फॉर्म को इंडिटरमिनेट फंक्शनल फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज बाकी का सारा भी रिजॉल्व होकर रिड्यूस होकर इस फंक्शनल फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोगों को बस ये तरीका ढूंढना है कि 0/0 के फंक्शनल फॉर्म को कैसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरीका है एल हॉस्पिटल रूल। इस एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग कभी भी 0/0 के फंक्शनल फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इस फंक्शनल फॉर्म में ऐसा क्या है, कैसे उसका प्रोसेस है, वो सब हम देखेंगे। बट यहाँ तक हम लोगों ने ये सीखा कि अगर 0/0 का फंक्शनल फॉर्म है जिसको कंसिडर किया जाता है फंडामेंटल इंडिटरमिनेट फॉर्म, उससे को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग एग्जैक्टली एल हॉस्पिटल रूल में होता क्या है। ये बताइए, यहाँ तक कंफ्यूजन है तो? Ma'am, the line where you have written all the indeterminate forms, what is written after infinity into infinity? Infinity into infinity is infinity. No, ma'am. After that, what is written there? 1 to the power infinity. Okay. Infinity to the power 0. ठीक है, तो ये क्लियर है। इंडिटरमिनेट फॉर्म किसको कहेंगे? जिसको हम नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं, या तो 0/0 मिल जा रहा है, इंफिनिटी मिल जा रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा मिल रहा है जिसका वैल्यू ही नहीं डिटरमाइन कर रहे हैं। अब हम सिंपली लिख दें, सपोज यहाँ जैसे ये फंक्शन है sin x by sin x का फंक्शन, मान लो अगर इसको हम ऐसे कुछ लिखें, इसी फंक्शनल फॉर्म को, इसका लिमिटिंग वैल्यू मान लिया आपसे पूछ रहा है, लिमिटिंग कर दो x टेंड्स टू 0, और आपको फंक्शन दिया है sin x by x। इसी फंक्शनल फॉर्म में मान लीजिए हम लिख देते हैं ऐसा। अब इसी को सॉल्व करोगे, x टेंड टू 0 बोल दिया, अब इसी को लिख दोगे ऐसे 0/0। अब ये क्या कोई मीनिंग क्लियर करता है? इसका मतलब क्या है? कभी भी सॉल्व करेंगे, कुछ भी करेंगे, रिजल्ट आएगा 0/0। ना इस रिजल्ट का कोई मीनिंग है और ना ही इस रिजल्ट को हम कहीं यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन में भी हम नहीं है कि हम ये यूज कर सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे फॉर्म को सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज किया जाता है। सो हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली अब एल हॉस्पिटल रूल है क्या। चलिए देखिए एल हॉस्पिटल रूल क्या है। पहले तो कंडीशन देख लो, एल हॉस्पिटल रूल कब यूज हो सकता है। सो पहला कंडीशन है एल हॉस्पिटल रूल को यूज करने के लिए कि जो भी आपने फंक्शन लिया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, वो फंक्शन टेलर्स थ्योरम से एक्सपैंड होना चाहिए। अगर वो टेलर्स थ्योरम से एक्सपैंड नहीं होगा, देन वी आर नॉट एबल टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। सो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में मेंशन भी है, लेट phi x एंड psi x, दो फंक्शन है phi x एंड psi x, बी फंक्शन ऑफ x जो कि कैपेबल है, कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपैंडेड
बाय टेलर्स थ्योरम, यहाँ टी कट नहीं मैंने दिया, देखो कट कर लेना, दिस इज टेलर्स थ्योरम। एंड इफ phi a is equal to 0, psi a is equal to 0, अगर ऐसा होता है phi a is equal to 0, मैंने जैसे वहां फंक्शन लिखा था ऊपर sin x का वैल्यू भी 0 आ जा रहा है और नीचे x है उसका भी वैल्यू 0 आ जा रहा है, देन 0/0 के फॉर्म में आ गया ये। लेकिन 0/0 के फॉर्म में आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस फंक्शन को हम एक्सपैंड कर पाए टेलर्स थ्योरम से, ये पहला कंडीशन है। अगर हम टेलर्स थ्योरम से एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे देन वी आर नॉट एबल टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। सो पहला कंडीशन है, लिखा है यहाँ, दिस फंक्शन शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपैंडेड बाय टेलर्स थ्योरम। अगर ये एक्सपैंड किया जा सकता है देन उसका सॉल्यूशन है दिस टर्म टेंड्स टू दिस टर्म। देखो क्या डिफरेंस है, दिस इज phi x by psi x, और ये लिमिटिंग वैल्यू आप लिमिटिंग वैल्यू एट x इज इक्वल टू a कर दीजिए। ये जो phi x है दैट टेंड्स टू phi dash x, दैट मींस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। दूसरा बोल रहा है psi x टेंड्स टू psi dash x, दैट मींस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो कि डिनोमिनेटर में है। अगर ऐसा रिजल्ट आ जाएगा तब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल, यही है एल हॉस्पिटल रूल, और एल हॉस्पिटल रूल करेंगे कब, यूज कब कर सकते हैं, व्हेन इट इज एप्लीकेबल ऑफ टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन यूज करें। अब टेलर्स थ्योरम को मुझे बता सकता है एग्जैक्टली टेलर्स थ्योरम में था क्या? Yes, ma'am. F of x plus h is equals to f of h. Sorry, f of a plus h is equals to, ma'am, f of a plus हाँ. h into f dash of a plus हाँ. h square into f double dash of a by 2 factorial up to हाँ. dot dot dot. डॉट इसी तरह करते चले जाएंगे फिर हमारा पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाएगा। सो एग्जैक्टली यही चीज हम लोगों को यहाँ करना है। अब टेलर्स एक्सपेंशन यूज करना है। सो फंक्शन हमारे पास x जो फंक्शन था दैट x phi x, सो x को हम लोगों ने क्या लेना है a प्लस h के टर्म में। विदाउट a प्लस h हम लोग पता है टेलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि टेलर्स थ्योरम का ये कंडीशन था ना, a प्लस सम कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का टर्म होता था, देन a इज दैट कांस्टेंट एंड h जो है वो हमारा वेरिएबल है। और ये x टेंड्स टू a h टेंड्स टू 0 वाला जो कंडीशन होता है वो हमारे पास ऑलरेडी है पहले से। देन अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम अब हम लोग अप्लाई करते हैं टेलर्स थ्योरम को ऑन दिस फंक्शन phi x। phi x हमारे पास जो फंक्शन था उस x को आपने रिप्रेजेंट करना है a प्लस h के टर्म में। सो phi x इज इक्वल टू phi a प्लस h। क्लियर है? अब phi a प्लस h को जब एक्सपैंड करोगे ऑन टेलर्स थ्योरम देन दैट इज इक्वल टू phi a प्लस h phi डैश a प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल phi डबल डैश a डॉट डॉट अप टू n तक चला जाएगा। कितने टर्म्स तक जा रहा है वी एक्चुअली डोंट नो, लेकिन हाँ ये एक्सपेंशन अप टू n टाइम्स जा सकता है। इसी तरह जो आपने न्यूमरेटर में जो फंक्शन था जैसे उसको सिंप्लीफाई किया, एग्जैक्टली आपके पास डिनोमिनेटर में जो है psi x वाला फंक्शन उसको भी टेलर्स थ्योरम पे अप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों कैपेबल होना चाहिए टेलर्स थ्योरम के एक्सपेंशन के लिए। सो psi x को एक्सपैंड कर दिया psi a प्लस h, then that is what psi a plus h times psi dash a h square by 2 factorial psi double dash a dot dot dot। अब यहाँ पे इस टर्म को फिर से हम लोगों ने डिवाइड कर देना है जैसे लिखा हुआ था एक्चुअल फॉर्म में, ये हमारे पास फंक्शनल फॉर्म है, लिमिट लेना है। सो ये चीज एग्जैक्टली हम करेंगे अप्लाई। तो यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो दिस टर्म बीइंग डिवाइडेड बाय दिस टर्म, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा दिस होल टर्म जो न्यूमरेटर में है लिख दो, दिस होल टर्म जो डिनोमिनेटर में है लिख दो। अब आप यहाँ से देखेंगे जो पहला टर्म था ये phi a and psi a, आपको ये पता है कि इस पे वैल्यू पुट करेंगे देन दैट विल बी 0, ये पता है ना। phi a एंड psi a जो है वो वैल्यू हो जाएगा 0 बिकॉज एट पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a जो है वो वैल्यू 0 हो जाएगा। सो ये टर्म तो रहेगा ही नहीं, दिस इज 0 दिस इज 0। सो हमारे पास ये टर्म जो रिड्यूस होकर इस फंक्शनल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, टेल मी।
हमने टेलर्स थ्योरम से एक्सपैंड करा, फर्स्ट टर्म जो है वो वैनिश कर जाएगा बिकॉज ये वही फंक्शन है जो sin x by x आ रहा था. सो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0. सो 0 प्लस सम टर्म, सो जो सम टर्म है वही बचा रह जाएगा. दिस इज 0, तो ये वैनिश कर जाएगा. अब इसी चीज को देखो, हम लोगों ने यहाँ से टर्म लिखना शुरू किया सेकेंड टर्म से. जब सेकेंड टर्म से कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास एक टर्म आपका h इंटू फाइव डैश ए एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल फाइव डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट कंटिन्यू जाएगा. नेक्स्ट टर्म इसी तरह कंटिन्यू. अब इसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है, दिस h इज कॉमन. h इस टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में h स्क्वायर है, थर्ड में h क्यूब आ जाएगा. सो एक h आप कॉमन लेके हटा सकते हैं. तो क्या करना है, न्यूमरेटर में से h कॉमन निकाल लीजिए. सिमिलरली डिनोमिनेटर में से एक कॉमन h हटा दीजिए. जब न्यूमरेटर से कॉमन h हटाओगे तो आपका टर्म्स जो बचेगा दैट इज व्हाट, फाइव डैश ए प्लस फाइव डबल डैश ए. यहाँ h स्क्वायर था, देन दैट विल रिड्यूस टू h बाई 2 फैक्टोरियल. ट्रिपल डैश जो है वहाँ h क्यूब होता है, तो एक h बाहर आ चुका है, दैट इज व्हाट h स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 इसी तरह चला गया. सिमिलरली यहाँ से अगर करेंगे तो दिस इज फाइव डैश ए फाइव डबल डैश ए h बाई 2 फैक्टोरियल, फाइव ट्रिपल डैश ए सॉरी नॉट साई ए h क्यूब स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल. इन दिस वे ये खत्म हो गया. h आपस में कैंसिल हो जा रहा है. अब कैंसिल होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, h का लिमिट लगा दो. सो h का लिमिट क्या था, वापस से देख लीजिए. h टेंड्स टू 0, as x tends to a h tends to 0. so h tends to 0 जब लगाएंगे तो जिसमें भी h टर्म इन्वॉल्व है, लाइक देखिए आपके पास यहाँ h है, इसमें h है, नेक्स्ट टर्म में h है, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, बाकी सारे टर्म्स में h का टर्म इन्वॉल्व होगा. अब चूंकि बाकी सारे टर्म में h का टर्म इन्वॉल्व है तो सबके सब 0 बन जाएगा बिकॉज h टेंड्स टू 0. सो बचा रहेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म, दैट इज व्हाट फाइव डैश ए बाई साई डैश ए. और यही रिजल्ट को हम यूज करेंगे फर्दर. ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक कंडीशन है, अगर ये फाइव डैश ए और साई डैश ए जो आप लाए हो सकता है ये फिर से 0 बाई 0 के फॉर्म में आ जाए. अगर ये दोबारा से 0 बाई 0 के फॉर्म में आ जाएगा देन अगेन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस फंक्शन को, देन लिमिट लेना होगा. सपोज थर्ड टाइम फिर से डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 आ जाए, देन आपको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, देन लिमिट लेना होगा. इन दिस केस आपको खुद नहीं पता वो कब तक आपको डिफरेंशिएट करना पड़े. फाइनली अगर मान लो 10 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो फिर भी 0 बाई 0 आ रहा है, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट इट एट 11th टाइम, 12th टाइम. इन दिस वे यू हैव टू कंटिन्यू. इसी तरह यहाँ लिखा है ये चीज, मान लीजिए ये 0 बाई 0 का जो कन्फिग्रेशन है वो आता जाता है टिल n-1 डिफरेंशिएशन. n-1th डेरिवेटिव तक आप निकाल रहे हो और वो 0 आ जाता है, देन अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट इट, अगेन you have to differentiate it at nth time. That means nth derivative you have to calculate. Then answer फिर से निकालो. ये कब रिड्यूस होगा, कहाँ तक जाएगा, no one knows. लेकिन ऐसे फंक्शन आपको इनफाइनाइट टर्म तक मिलने वाले नहीं है. जनरली जो 4-5 तक बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा. अगर क्वेश्चन इजियर रहा तो 1 से 2 डिफरेंशिएशन में ही रिजल्ट आ जाएगा. अगर इजियर नहीं रहा देन हो सकता है आपको 1-2 से ज्यादा बार भी डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है. तो मुझे ये बताइए एल हॉस्पिटल रूल में एक बार देख लीजिए थॉरोली, कहीं कोई कंफ्यूजन लग रहा है वैसा तो बताइए. दिस इज द स्टेटमेंट. जिसमें ये रिड्यूस होकर ऐसे फंक्शनल फॉर्म में आ रहा है. डिफरेंशिएट करना है, पहले डिफरेंशिएट करना है, देन टेंडिंग टू 0, h टेंड्स टू जो भी लिमिट है वो लिमिट ऑपरेट करो. देन आपको ये प्रोसेस है टेलर्स के एक्सपेंशन के फॉर्म में. देन h टेक h एज ए कॉमन, फिर h टेंड्स टू 0 लिमिट अप्लाई करना है, देन ये टर्म आ जाएगा. सो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे.
अगर n टाइम तक आ रहा है, n-1 टाइम तक डिफरेंशिएट कर रहे हो और तब भी 0 आ रहा है, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट n+1 टाइम। n-1 तक कर रहे हो तो nth टाइम में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, नो वन नोज। वो फंक्शन पे डिपेंड करता है, और वो टोटली फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है ये? नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मान Yes, ma'am. फंक्शन हम Yes, लोग ma'am. ले रहे थे, उसी को लेके चलते हैं अगर क्लियर है तो। जैसे मान लीजिए इस फंक्शन को, ये 0/0 दिख गया, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इट इज इनडिटर्मिनेट। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, ये लिमिट लो, x टेंड्स टू 0 करो, ये रहेगा, ये हमारा हर केस में रहने वाला है 0। sin x का डिफरेंशिएशन कर लो, क्या होता है बताइए जरा मुझे। cos x cos x, Cos और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बता। 1 1। अब cos 1 होगा। पे 0 रखना है, x का वैल्यू 0 रखो, so this is what, cos 0 1 cos 0 1. and this is 1, so cos 0 का वैल्यू 1, so this is 1/1, 1/1. आ गया 1। दिस इज द आंसर। और अब इसका वैल्यू हम बता सकते हैं sin x/x। ये शायद आपने 11-12 में बहुत बार किया होगा कि sin x/x का वैल्यू 1 होता है, ये आपने आंसर Yes, यूज किया होगा, yes ma'am yes ma'am Yes, भी कराओ। तो ये हम लोग यूज करते हैं, तो डायरेक्टली ये जो आ रहा है, दिस इज द आंसर। और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म को बाय हेल हॉस्पिटल रूल हम लोग सॉल्व करके ये आंसर लाते हैं, और शायद आपने ये यूज किया भी होगा, किया है ना? yes ma'am yes ma'am चलो इसी चीज में अगर मान लो सॉल्व करना हो, आपको क्वेश्चन दिया हो tan x, ठीक है, tan x/x, इसका वैल्यू सॉल्व करके बताइए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आपको लिमिट वही है, लिमिट x टेंड्स टू 0, बिकॉज बेसिकली हम लोग 0/0 ही फॉर्म पढ़ रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो तो क्या आंसर आता है इसका। 1 ma'am 1, ओके। yes ma'am और बाकी लोग करिए, देखिए क्या आता है। ma'am. 1, ma'am. 1, Yes, ma'am. एनीवन एल्स? 1, ma'am. चलिए ठीक है। अब इसी तरह देखो तो x² लिमिट x टेंड्स टू 0, Zero, ma'am. 0, ma'am. 0 आ रहा है, Yes, ma'am. yes ma'am 0 0, ma'am. ओके। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए तो ये बन पाएगा आपसे। Just try to solve this function. Evaluate limit x tends to 0, a to the power x minus 1 by x. जीरो आ रहा है। 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तब तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर इतना पढ़ने का क्या फायदा। गौरव का 0 आया है। यस मैम a to the power x का डिफरेंशिएशन वही जो लिखा हुआ है वही है। a to the power x का डिफरेंशिएशन ये नहीं है, ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके जब भी कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल होता है देन हम उसको ऐसे ही ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, लाइक दिस।
और यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या है, देखिए दो फंक्शन इन्वॉल्व किया है, द वन इज लॉग एंड द अदर इज एक्सपोनेंशियल। सो अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल कभी भी हो, देन यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन से। ये एक बेस्ट वे है टू ट्रांसफॉर्म व्हेन यू गेटिंग अ फंक्शन ऑफ कांस्टेंट टू पावर वेरिएबल। जनरली हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट होते हैं, बट यहाँ जो फंक्शन है वो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, एंड इन दैट केस आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन से। लॉग ए होगा मैम आंसर। ओके, व्हाट अबाउट द रेस्ट? मैम log a। लॉग ए, ओके। और अब सॉल्व हो गया, देखिए क्या आएगा। AY मैम। ए वाई, नो मैम, आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आया, ओके। करो देखो आंसर क्या आता है। व्हाट अबाउट रोल नंबर 18, 11, 42? Number 18, am I audible to you or not? Yes, ma'am. You are. Yes. Tell me what is the answer? हाँ, तो मुझे आंसर बताइए। I'm trying to solve, ma'am. Okay. रोल नंबर 11, 21 रोल नंबर। किशन, आप क्या कर रहे हो? यस मैम, सॉल्व कर रहे हैं मैम। ओके, करिए, अच्छी बात है। मैम सेकेंड स्टेप में प्रॉब्लम है मैम। सेकंड स्टेप रुका हुआ है, यस मैम। क्यों, बताइए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, बोलिए। इस टर्म को डिफरेंशिएट करो, पावर x माइनस 1, ए टू द पावर x को इससे रिप्लेस कर दो, -1 बाई यस एक्स मैम। है वो रखिए और उसको डिफरेंशिएट करिए। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये देखना है आपको। तो e टू द पावर ax मान लो, log a इज अ कांस्टेंट, e टू द पावर a की जगह ये टर्म है log a, उसका डिफरेंशिएशन यस आप है वैसे सॉल्व कर लीजिए। ओके मैम। और इससे क्वेश्चंस ना आसान होते हैं हमेशा, डिफरेंशिएशन करना है। और जो आपने पढ़ा है, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जितने लंबे चौड़े टर्म्स पढ़े हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड ऑल, वो सब ज़्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू जो आप अभी कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक यू कैन से, बिकॉज इसमें आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है जो आप बचपन से करते आ रहे हो। मैम log a आ रहा है आंसर क्या? हाँ, log a ही होगा। ओके मैम। और गौरव का बना, क्या कर रहे हो गौरव अभी तक? यही पढ़ रहा है मैम। अरे इसको डिफरेंशिएट करो ना, बोला तो e टू द पावर x a ax का सम, a की जगह समझ लो log a है। अब इसका मैम log a है। हाँ मैम log a मेरा पे। ओके, गुड। Yes, ma'am. Log a. सब लोग आंसर ऐसे ही नहीं बता रहे हो ना कि किसी एक ने बोल दिया तो चलो वही आंसर है। नो मैम मैंने बनाया है। No, ma'am. No. चलो अच्छी बात है, बनाया है तो देन गुड। चलिए देखिए क्या है, जिसको नहीं समझ आया देख लो एक बार क्या है। a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स। देखो इसमें सबसे ज्यादा इस पूरे टर्म को सॉल्व करना बहुत आसान है, सिर्फ एक टर्म को सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये कभी भी एक ही फॉर्म से सॉल्व होगा, क्योंकि ऐसा फंक्शन जो अब तक हम लोग पढ़ते हैं, जो जनरल फंक्शंस होते हैं,
उसमें वेरिएबल का पावर हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी भी एक्स स्क्वायर पढ़े होगे, एक्स क्यूब पढ़े होगे, 3x स्क्वायर पढ़े होगे, लेकिन 2 टू द पावर x ऐसा कोई फंक्शन होना, वो फंक्शन हमारा कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल वाला केस जब हो, तो उसको हमेशा लॉग और एक्सपोनेंशियल के हेल्प से ऐसे फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। होता क्या है इसमें, लॉग और एक्सपोनेंशियल जो है वो अपोजिट फंक्शन होता है। कभी भी लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो दोनों अपोजिट फंक्शन है, तो वो दोनों एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल कर देता है। तो अगर हम a टू द पावर x को इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कभी भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल हो तो ऐसे लिख सकते हो। अब इतने टर्म को यहाँ रिप्लेस कर दो a टू द पावर x माइनस 1 बाई x को, e टू द पावर x log a माइनस 1 इतना आ गया। अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन, इस टर्म का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन है, तो e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x जो लिखा हुआ है वो e टू द पावर ax इनटू a, तो a की जगह क्या है log a, तो e टू द पावर x log a इनटू log a माइनस 1 का डिफरेंशिएशन आपको पता है 0, कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, सो सिंपली ये लिख दिया। अब x का वैल्यू 0 रखो, तो ये 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 माइन इनटू log a, log a तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, उसमें x का टर्म नहीं है, सो सिंपली आप log a लिख देंगे। सो e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड log a, सो दिस इज व्हाट log a, सिंपली आंसर आ गया। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर? चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए तो जरा ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, जस्ट टू ट्राई टू सॉल्व दिस, जस्ट वेट। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 minus x square divided by log cos x। ये हमारा फंक्शन है, मैम हाँ बोलिए। Ma'am, when we put x barabar 0 in this only question, ma'am, we will get answer 1. So because log 1 by log 1, ma'am, in log 1 it is is 0, not log 1 is 0, you don't know, okay. log 1 is 0। You all have to rejoin again, you know it.